Kumar Shaman. I have done my masters from IIT Roorkee, and I have cleared 3 times engineering services, 18, 19, and 20. Recently given the interview. Now, the today's lecture on the electromagnetic theory, and the electromagnetic theory is the very important subjects for the एज फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की अगर हम बात करें, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आपका जो है फॉर ईसी वालों का जो है ये 10 to 12 मार्क्स का आएगा, राइट? सो फॉर द ईसी कैंडिडेट 10 to 12 मार्क्स, एंड फॉर द इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स this is weightage of 5 to 6 marks. So it is very important subjects, and it is the one of the toughest subject in the GATE exam, right? But make sure in this platform I will try मैं बहुत ही इजी तरीके से कोशिश करूंगा आप सबके साथ शेयर करने के लिए. सो आई विल ट्राई माय बेस्ट. नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द वेक्टर एनालिसिस. So today I am going to discuss the questions related with the coordinate systems and the concept which is related to the coordinate system and the vector analysis, right? So basically this series just started for the new candidates or as well as for the old candidates. So this is the electromagnetic theory, and I'm going to start with the coordinate systems, right? So this is nothing but your what is the coordinate system. So what do you mean by the coordinate system? Coordinate system kya hai? And what do you mean by the vector analysis? And what is the importance of vector analysis and the coordinate system in the electromagnetic theory? So basically in the electromagnetic theory, all geometrical parameters and all basic things all are depends on the coordinate system and the vector analysis, right? So there are basically 3 types of the coordinate system, and these 3 types of the coordinate system is nothing but one is called Cartesian coordinate system. Cartesian coordinate system, right? Second one, the cylindrical coordinate system. Cylindrical coordinate system. And the third one is the spherical coordinate system. A spherical coordinate system, right? So third one is the spherical coordinate system. So there are 3 types of the coordinate system: Cartesian, cylindrical, and the spherical. So what the representation? What is the main purpose to represent the any point in these 3 coordinates, right? As for example, let's say the Cartesian coordinate system. So for the Cartesian coordinate system, let's say for the Cartesian coordinate system, right? So what do you mean by the Cartesian coordinate system? सबसे पहले देखते हैं हम लोग Cartesian coordinate system क्या है, right? जैसे किसी भी पॉइंट को, if you want to locate any point, let's say the point is nothing but this is your z axis, this is your y axis, this is your x axis, or maybe you can write here this is your y axis, this is your z axis, this is your x axis, right? These axes are 90 degree out of phase. सारे के सारे आपके क्या है सर? आपके 90 degree out of phase हैं. Let's say if you want to locate the any point P, this is the point P, right? So if you want to locate any point P, so the coordinate of the P is nothing but x, y, and z. So in this case, these all parameters that is the point varied along the x direction, the point varied along the y directions, and the point varied along the z directions. So basically these are the points which is varied in the Cartesian coordinate systems. Now the point which is varied in the Cartesian coordinate system along a single axis, let's say along x axis. So if you locate any point along x axis, so the another coordinate system will be 0. So if you want to locate the any point in the y axis, then other coordinate will be 0. If you want to locate any point on the z axis, then the other point will be equal to 0. So these are the main coordinate systems, and these are the parameters on which
we can define the Cartesian systems, right? So this is called Cartesian coordinate system, which is nothing but your 3D coordinates, 3D planes, right? Now come to the point कि सर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को किस तरह से हम यूज करेंगे. So if you want to locate the any change in the length, let's say the dl. So dl is what? The differential length. Dl is nothing but differential length. So dl represents the differential length. So the differential length is nothing but change along the x direction is what? Dx into ax. Change along the y direction is what? Dy into ay. And the change along the z direction is what? Dz into az. So this is the differential plane. Now, if I am talking about the plane, let's say this is y, this is z, and this is your x. So this represents the xz plane. This represents the xz plane, right? Now, which one perpendicular to that plane? The perpendicular to that plane either along the ay directions or along the minus ay directions, right? So perpendicular to the plane, it may be ay directions or it may be minus ay directions. If I am talking about the xy plane, so for the xy plane, your perpendicular direction may be az directions or maybe minus az directions. If I am talking about yz plane, so for the yz plane, the perpendicular direction may be ax or maybe minus ax, right? So these are the parameters that is which define the differential line and the differential surface as well as the differential volume, which is I am going to discuss further. Okay. Now come to the next coordinate system, and this is nothing but your cylindrical coordinate system, right? Cylindrical coordinate system. सर ये बहुत ही इजी है ना. सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ध्यान से देखिएगा. मान लीजिए आप कोई सिलेंडर कंसीडर करिए. लेट अस कंसीडर ए सिलेंडर, है ना, आपका घर का सिलेंडर है, वैसे कंसीडर कर लो आप. दिस इज योर सिलिंड्रिकल शेप, राइट? नाउ फॉर दिस सिलिंड्रिकल शेप, this is, let's say this is your z direction, and from the base, let's say this is your y direction and this is your x directions, right? Now in this case your point is very, that is, this is your radius. Let's say radius is rho. Radius is rho. So at the point outer surface, this is nothing but rho, phi and z. So what do you know? Rho, phi and z. Rho, phi and z. Rho is what? Rho here is radius. Rho is radius. Phi. Phi, this is your base angle. Phi is your base angle and z is your height. अब बताइए सर, किसी भी सिलेंडर को अगर डिफाइन करना है, किसी भी सिलेंडर को अगर डिफाइन करना हो तो ऑब्वियस है हम तीन पैरामीटर को लेकर के चलेंगे. और तीन पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो वो सर तीन पैरामीटर आपके हैं रो, फाई एंड कौन सा है सर आपका जेड है. सो दीज थ्री पैरामीटर्स इज नथिंग बट रो, फाई एंड जेड, राइट? Now this phi is nothing but base angle. So let's say this is your base angle, this is your base, this is base parameter, right? This is variable your base parameter. So this is your base parameter. Come to the point. This is your base, right? This is your cylinder radius. This is your base. This is your radius. This is radius rho. This rho. So it is also rho. So this one also your rho. This is also your rho. Now this is your base angle phi. So if you want to rotate, just rotate it here. If you want to rotate, then phi will be changed. So phi will be changed from 0 to what? 2 pi. So phi will be changed from 0 to 2 pi. But your rho will be changed. Rho is what? Rho is your radius. So rho is your radius. So if rho equal to 0, then it will represent the point.
If rho is going to the infinite, so this is considered to be infinite lines, and this is nothing but your cylindrical shape. Now your z height will be varied from minus z to plus z. So this z is varied from minus z to plus z, minus z to plus z. This rho is varied from 0 to infinite, and this phi is varied from 0 to 2 pi. Right? Now come to the point. Let's say this is x axis, this is y axis, this is your z axis. So if you want to draw this one, so this is rho. So this one is what? Rho cos phi, right? Base angle, base point. This is the base radius, rho cos phi, and this height is what? Rho into sin phi. So we can say here in the cylindrical coordinate, x equal to rho cos phi, y equal to rho sin phi, right? So your x is equal to rho cos phi and y equal to rho sin phi, right? So x is rho cos phi and y is rho sin phi. Now what is the z? So z is nothing but z क्या है आपका? What is the z? सर z आपका जो है वो हाइट है, एंड z कहां से कहां वेरी करेगा? So z is varied from minus infinite to plus infinite. So if you want to height, this is your z. So z is nothing but equal to z. Now squaring both sides. So if you want to square both sides, this is x square plus y square. This is equal to rho square, and this rho is nothing but under root x square plus y square, right? So x and y क्या है? x and y सर आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, रो क्या है आपके सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में है. So this is the relation between Cartesian coordinates and cylindrical coordinates. So in the cylindrical coordinates, radius of the cylinder is under root x square plus y square and z equal to z. Now just इसको आप डिवाइड कीजिए. So y by x equal to 10 phi and the phi equal to tan inverse y by x, right? So in cylindrical coordinate, rho is equal to under root x square plus y square, phi equal to tan inverse y by x, and z equal to z. So this is the proof of the cylindrical coordinate system, right? So here x is what? Rho cos phi, y is equal to what? Rho sin phi, and z equal to z. So this is called cylindrical coordinates. कौन सा coordinates है आपके सर? Cylindrical coordinates. अब आता है मुद्दा कि क्या इंपॉर्टेंस है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का, हम क्यों यूज करते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, why we use the cylindrical coordinates parameter in the electromagnetic theory. Let's say if you want to locate the electric field intensity or magnetic field intensity, right? So if you want to locate the magnetic field intensity in the electromagnetic theory or in the magnetostatic theory, then there is requirement of what? H dot dl equal to I enclosed. This is called Ampere circuital law. So by using the Ampere circuital law, जो आगे हम आपको पढ़ाएंगे, Ampere circuital law से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं. तो वहां पर हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे कि किस तरह से सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए सारा पैरामीटर को हम डिफाइन करेंगे, राइट? तो अभी तक हम दो पैरामीटर देख चुके हैं. एक था आपका कौन सा सर? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में देख लिया मैंने, x वेरी किया कहां? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. y कहां से कहां वेरी किया? माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी. एंड z भी वेरी करेगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. दिस इज द फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. नाउ इन द सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, these are the parameters on which we can define the cylindrical coordinates, right? Now come to the next, spherical coordinates. So the next coordinate system is a spherical coordinate system. Very important. सर देखिए, spherical coordinate system को हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे एंटीना थ्योरी में. जब मैं आपको एंटीना थ्योरी पढ़ाऊंगा, वहां पर देखिएगा पूरा का पूरा spherical coordinate system डिपेंड्स ऑन द एंटीना थ्योरी. सारे के सारे जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के जो भी यूजफुल पैरामीटर्स है, ऑल आर यूज इन द एंटीना थ्योरी, राइट? सो स्फेरिकल इट मींस व्हाट? अ स्फीयर, राइट? अ स्फीयर को आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं? जैसे मान लो आपने बॉल को लिया,
एज्यूम कर लियो बॉल, राइट, बॉल इज योर स्फीयर, फुटबॉल जो खेलते हैं हम लोग, है ना, दिस इज योर स्फीयर। लेकिन अगर हम सर्कल की बात करें, सर्कल दिस इज 2D, बट स्फीयर दिस इज 3D, राइट। सो द 2D पैरामीटर्स जो भी हैं आपके, दिस इज नॉट द 2D पैरामीटर जो भी है उसमें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को लगा नहीं सकते हैं। जब भी हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, मतलब हम 3D की बात करेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, एंड 3D प्लेन में जब भी हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसका वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा। इट मींस इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, टू अंडरस्टैंड द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, लेट अस कंसीडर, एंड दिस इज नथिंग बट योर स्फीयर। कौन सा कंसीडर किया मैंने सर? स्फीयर। अब ध्यान से समझिएगा, अब स्फीयर है तो बेस का एंगल चेंज होगा। अब स्फीयर ऐसे रोटेट किया, बेस से रोटेट करेगा, तो बेस का पैरामीटर कितना से चेंज होगा? तो बेस का जो है वो कितना है, 0 से लेकर के कितना तक जाएगा, मैक्सिमम 2π तक जाएगा। दिस इज योर बेस। नाउ वर्टिकल एंगल जो बनाया, वर्टिकल एंगल जो है वो वर्टिकल एंगल कितना है? सो यार वर्टिकल एंगल इज व्हाट? थीटा। So from the vertical, it makes the theta. It makes the theta from the vertical, and from the base, it makes the phi. It makes the phi. Now, from the origin to any point P, let's say this is the radius R. किसी भी पॉइंट P पे रेडियस कितना मैंने मान लिया? R. मतलब ऐसे समझ लो आप, ये स्फीयर था, इस स्फीयर के पॉइंट से जो रेडियस है वो R है, और आउटर सरफेस का पॉइंट मैंने मान लिया R, थीटा एंड फाई, राइट। अब ये R, थीटा एंड फाई है, उसमें से देखिए जो फाई है वो कौन सा एंगल है? बेस का एंगल है। एंड थीटा कौन सा है सर? सर थीटा मैक्स फ्रॉम द वर्टिकल एंड पॉइंट, राइट। अब थीटा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जब ये पॉइंट P इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है तो थीटा कितना है? 0। थीटा कितना है? 0। अब जैसे जैसे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस से हम मूव करेंगे, जैसे जैसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करता जा रहा है, 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 ये पॉइंट जैसे जैसे मूव करेगा, जैसे जैसे मूव करेगा, यहां पर देखिए ये पॉइंट ऐसा मूव करके आएगा यहां पर, तो ये पॉइंट जैसे यहां मूव करके आएगा, जो ऑलरेडी इधर का पॉइंट था, ये ऑलरेडी इधर का जो पॉइंट था वर्टिकल एक्सिस का पॉइंट, वो मूव करके कहां चला जाएगा? इस पॉइंट पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या समझे? to rotate vertically, to rotate vertically in one rotation, so one rotation will complete, one rotation will complete if theta will be varied from 0 to pi, right? But in this direction, if you want to rotate in this direction, base directions, so for base, theta will be varied from 0 to 2 pi for one rotations, right? If you want to semi circle, अगर सेमी सर्कल है तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 से लेकर के π/2 तक, राइट। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हेन थीटा इज वेरिड फ्रॉम 0 to pi, phi is varied from 0 to 2 pi, and r is varied from 0 to infinite, right? Now come to the point. अब इसको हम ब्रेक करते हैं सर, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जब इसको हम ब्रेक करेंगे, दिस वन x directions, this is your y directions, right? This is your z. Now come to the point. This is your r. So z equal to what? Z equal to what? R sin r cos theta, and this point is what? R sin theta. So this is r sin theta, and this is r cos theta. Now come to the point. So x is equal to what? X equal to what? So this is r sin theta, and this is your parallel. So r sin theta, and this is nothing but r sin theta into cos phi. This is r sin theta into sin phi, right? So here z is what? Z is r cos theta. X is what? X is r sin theta into cos phi. Y is what?
r sin थीटा इंटू sin फाई। हाउ इज इट पॉसिबल? देखो ध्यान से समझिएगा। सर ये कितना है? ये r sin थीटा हुआ, ये r sin थीटा, ये भी क्या है? रेडियस है। तो सर ये भी रेडियस है, तो ये भी क्या होगा आपका? जब वो r sin थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका? r sin थीटा होगा सर। तो ये कंपोनेंट r sin थीटा है, यहां पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? r sin थीटा के साथ cos फाई, ये एंगल चूंकि फाई है, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? r sin थीटा के साथ sin फाई। इसलिए ये y डायरेक्शंस वाला जो हो गया r sin थीटा इंटू sin फाई, x डायरेक्शंस का हो गया r sin थीटा इंटू cos फाई, एंड z डायरेक्शन में कितना था आपका? r cos थीटा, राइट? So this is the compositions. Now come to the point. So x square, दोनों का स्क्वायर कीजिए आप। So x square plus y square is equal to what? This is equal to r square sin square theta, क्योंकि cos square phi plus sin square phi equal to 1. Now तीनों का ऐड कीजिए, x square plus y square plus z square, this is r square sin square theta plus r square cos square theta. So the x square plus y square plus z square, and this is equal to r square, and this is the equation of the sphere. This is the equation of the sphere. So r radius is what? Under root x square plus y square plus z square. Now come to the point. Theta is what? What do you mean by theta? Right? Phi equal to what? So just first by 2. So 2 by 1 जब करेंगे आप इक्वेशंस को, then you will get tan phi equal to y by x. So phi equal to tan inverse y by x. This is equal to phi. Now z equal to what? R cos theta. So theta is equal to cos inverse z by r. So theta equal to cos inverse z by r. और आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू, है ना? कैसे लिखेंगे सर आप टेन थीटा? यहां पर देखिए, इसको अंडर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं सर? देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, and z square equal to what? R square cos square theta. So you can write here the tan square theta equal to x square plus y square by z square. So tan theta is what? So tan theta is under root x square plus y square by z. So theta equal to what? Tan inverse under root x square plus y square divided by z. सो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं सर, राइट? सो स्टूडेंट्स, कनेक्टिविटी बनाए रखें अच्छे तरीके से। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको सर? सर अभी तक मैंने पढ़ाया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अभी आपको मैंने पढ़ाया सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड थर्ड वन इज योर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, राइट? सो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स बाय व्हिच वी कैन डिफाइन एनी पॉइंट इन द स्पेस. नाउ if you want to define any point in the space, then we prefer the spherical coordinates. Why? Because spherical coordinates represent the 3D points as compared to your Cartesian or as compared to your cylindricals. If you locate any point in the cylindrical coordinates, then in cylindrical coordinates, either along the z direction, along the rho, and along the phi. बट इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, जैसे हम एंटीना की बात करते हैं सर, ध्यान से समझिएगा, एंटीना क्या करेगा? एंटीना जो है कभी भी जो भी रेडिएट करेंगे, टोटल आउटवर्ड रेडिएट करेंगे पॉइंट्स को। अब एंटीना, मान लीजिए आपके घर के पास एंटीना लगा है किसी मोबाइल टावर पे, ध्यान से समझिएगा। अब मोबाइल टावर पे जो भी एंटीना लगे होंगे सर, वो एंटीना क्या करेगा? चारों डायरेक्शंस में आपके रेडिएट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि इधर वाले को जब ज्यादा दिया, इधर वाले को कम दिया, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। सो इट स्प्रेड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ऑल डायरेक्शंस, राइट? सो फॉर द ऑल डायरेक्शंस, दैट इज नथिंग बट 3D पॉइंट्स, एंड दैट्स वी कंसीडर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। इसीलिए हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को प्रीफर करते हैं।
So that's why we prefer the spherical coordinates. So these are the coordinate systems. Now come to the point. इसको आप लिख लीजिए अच्छे तरीके से, है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, साथ साथ में लिखते भी चले जाइए, समझते भी चले जाइए सर मेरे साथ, है ना। चलिए यही बता रहा था मैं, है ना। यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस, ये पॉइंट आपका क्या हो गया, रो साइन फाइव, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहाँ पर ये इसको मान लिया आर साइन थीटा, जो मैंने अभी बताया अभी आर साइन थीटा, तो इसको आर साइन थीटा मान चुका है, तो ये रो क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव। ये क्या बन जाएगा, आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव। देखो यही है आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, इधर लिखा है, ठीक है। ये क्या बन गया, आर कॉस थीटा, ये क्या हो गया आर। पता है ना सर ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है दिस इज योर आर, दिस इज थीटा, देन ये क्या बन जाता है सर, आर कॉस थीटा, एंड ये क्या बन जाता है सर, आर साइन थीटा, राइट। तो इस तरह से कंपोनेंट को हम ब्रेक किए हुए, और कंपोनेंट ब्रेक करते हुए यहां पर अभी हम रिलेशन निकाल चुके हैं, एंड द रिलेशन इज नथिंग बट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। अब क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन आएगा कि किसी भी पॉइंट P को मान लिया x, P पॉइंट जो है वो कार्टेशियन में है, P मान लिया कार्टेशियन में है, 1 - 2 1 वैल्यू है। अब आपसे पूछेगा कि इसको स्फेरिकल में कन्वर्ट कीजिए या इसको आप सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कीजिए। सो कन्वर्ट इनटू स्फेरिकल और इनटू द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। या तो स्फेरिकल में इसको कन्वर्ट कीजिए या तो आप इसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट कीजिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो एनी पॉइंट कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो अभी मैंने रिलेशन बताया आपको सर, स्फेरिकल में रिलेशन क्या था, x इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू कॉस फाइव, y इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू साइन फाइव, एंड z इक्वल टू आर कॉस थीटा। सारा वैल्यू पुट करना है, यहाँ से थीटा एंड फाइव का वैल्यू निकाल लेना है एंड आर का वैल्यू निकाल लेना है। सो पॉइंट P स्फेरिकल में क्या बनेगा, आर थीटा एंड फाइव, दिस इज इन into the spherical coordinates, spherical coordinates, right। तो स्टूडेंट्स अभी तक क्लियर हो चुके हैं, हम तीनों मुद्दों पर चर्चा कर ली अभी हम, कार्टेशियन, स्फेरिकल एंड आपका सिलिंड्रिकल। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ध्यान से समझिएगा, किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, राइट, किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर आपको डिफरेंशियल लेंथ पता हो या डिफरेंशियल लेंथ अगर आपको पता चल जाए, तब हम यहाँ पर डिफरेंशियल सरफेस एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम के दोनों को हम बहुत इजीली तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिएगा। मान लिया दिस इज इनटू द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, किस पे है सर, आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में है, राइट। दिस इज y डायरेक्शंस, दिस इज x डायरेक्शंस, दिस इज z डायरेक्शन। लेट्स से दिस इज द क्यूब, एक क्यूब है। अब इस क्यूब में यहां पर देख रहे हैं चेंज अलोंग द x डायरेक्शन इज dx, change along the y direction is dy, and the change along the z direction is dz, right। So what's the length change along the x directions? जैसे मान लो ये आपका z था, मान लिया ये आपका y है, ये मैंने मान लिया x है, तो सर x के डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, that is nothing but your dx। सर z के डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, this is nothing but your dz। सर y के डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, दिस इज योर dy। सो द डिफरेंशियल लेंथ dl इक्वल टू dx into ax, it means the differential change along x directions, dy into ay, differential change along y directions, dz into az, this is the differential change along the z directions। अब मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। अगर आपको सरफेस का लिखना है, सरफेस का अगर आपको लिखना है,
तो क्या बताएगा, देखिए ध्यान से, वेक्टर में आपको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन, उस प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर जो डायरेक्शंस है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा बताएगा सर, यूनिट वेक्टर बताएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स और ये वाई था, तो ये प्लेन क्या था, ये प्लेन क्या है, एक्स वाई प्लेन है। अब एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन किधर होगा बताइए, ये परपेंडिकुलर या तो एजेड होगा और या तो माइनस एजेड होगा, राइट। इसका मतलब क्या समझे कि अगर आपको एरिया लिखना है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, द डिफरेंशियल लेंथ इन एक्स डायरेक्शंस and differential length in y directions, right, length into width, this will gives the area. So this length is what, let's say this is dy and this, let's say this is equal to dx. So area is what sir, sir area is dx into dy, but direction is what, direction is along the z directions or minus z direction, depends on the cross product, right. So this is dx cross dy and the length along the direction of AZ. सेम एंटिटी यहाँ पर देख रहे हैं, एरिया का पता चल गया सर, तो एरिया का पता चल गया, तो यहाँ पर देखो ds कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका, अगर आपने इसको इसको पकड़ा है ना, देन ये आपका होगा परपेंडिकुलर, अगर आपने इसको इसको पकड़ा है, देन इट विल बी योर परपेंडिकुलर। इफ यू कंसीडर dy and dz, the ax is your perpendicular directions. If you consider dx and dy, then az your perpendicular directions. If you consider dz and dx, then ay is your perpendicular directions. So the differential surface ds equal to dy into dz. So if you consider dy into dz, then x is your perpendicular directions. It means what will be the net impact of the area, net impact of the electromagnetic wave through this area, and this area is nothing but length into width, that is the dy into dz, and the direction will be along the ax directions. So wave always propagated perpendicular to that plane, perpendicular to that plane. So if we consider this is dx, let's say this is dx, right. So if we consider this is dx and dz, if we consider sorry, if we consider dx and dz, then perpendicular direction along the ay directions. If you consider dz and dy, then perpendicular direction along the z direction, right. So this is the way to find the direction of the area. Now come to the volume. So what do you mean by volume, volume क्या है, हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम किसके लिए होता है सर, वॉल्यूम फॉर द क्लोज सरफेस, वॉल्यूम फॉर द क्लोज सरफेस. So let's say this is your closed surface, this is the cube which is nothing but having the closed surface, and this direction is dx and this length is dy and this is your dz. So volume of the cube is what, वॉल्यूम की बात अगर हम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, this gives the volume. So the length is dx, dy and dz. So तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दे, then this will gives you differential volume, right. So in the Cartesian coordinate system, Cartesian coordinate system में सर कभी भी अगर आपको पैरामीटर निकालना हो, then along the length, along the area, along the volume, ये तीनों पैरामीटर आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं, right. So this is the way to calculate the differential length, differential area and differential volume for the Cartesian coordinates, right. Now come to the next topic.
तो इसको आप लिख लें फटाफट। तो देखिए इसको मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया हूं। दिस इज dy and dz. So the direction of along the ax directions perpendicular to that plane. Let's say this is the dx and this is your dz, then perpendicular to that plane along the ay directions. So this is your ay directions. Now let's say this is dx and this is dy. So the perpendicular to that plane, this is az. So this represent all the area. So this all represent the area. क्या रिप्रेजेंट करेगा सर आपका एरिया? So these all parameters represent the area. Which all parameters represent the area. Now come to the next topic. Next is what is the cylindrical coordinates and what do you mean by the cylindrical coordinates? ये तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको ऑलरेडी। अब हम cylindrical coordinates का लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। सर cylindrical coordinate में क्या था? ये आपके बेस थे, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबका डिफरेंशियल चेंज लेना है, ठीक है। तो जेड के डायरेक्शन में कितना चेंज होगा? तो डीजेड होगा किधर? एजेड डायरेक्शन में। चलो ठीक है। रो के डायरेक्शन में किधर होगा? ये रो फाई और जेड था, तो रो के डायरेक्शन में जो चेंज होगा वो क्या होगा सर? डी रो इंटू ए रो, राइट? दैट इज चेंज इन रेडियस एंड दिस रेडियस इंपैक्ट अलोंग द एरो डायरेक्शंस। ये तो इजी है। अब मुद्दा आता है कि सर ये आर्क में कितना चेंज होगा? ये जो आर्क है, ये आर्क में कितना चेंज होगा? ये आर्क में कितना चेंज होगा? तो ये एंगल कितना बनाया था सर? फाई एंगल बनाया था, राइट? एंड आर्क इक्वल टू आपको पता है कि आर इंटू डी फाई इक्वल टू आर्क देगा, राइट? रेडियस इंटू चेंज इन एंगल, दिस विल गिव्स योर आर्क। सो आर्क में कितना चेंज हुआ? दिस इज नथिंग बट ए फाई डायरेक्शन में चेंज होगा, क्योंकि फाई का मूवमेंट आपका कहां है? 0 से 2 पाई के बीच में है। सो 0 से 2 पाई के बीच में फाई का मूवमेंट है। सो रो into d phi, this is nothing but gives the arc. So arc will change along the a phi direction, dz along the az directions and d rho along the a rho directions, right? So बहुत इजी तरीके से आप लिख सकते हैं कि the differential length dl equal to d rho into a rho plus rho into d phi into a phi plus dz into az. Very very important. अब सर बहुत इजी है, अगर आपको पता चल जाए डिफरेंशियल लेंथ तो डिफरेंशियल एरिया हम बहुत इजीली तरीके से लिख सकते हैं, बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। लिखने का तरीका क्या है वो देखिए, हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए सर लिखने का तरीका देखते हैं हम लोग, है ना? ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स आ गया, जस्ट 1 मिनट। चलिए देखिए यहां पर क्या है सर, आपने क्या किया, आर्क वाला ये देखो, ये पॉइंट क्या होगा? ये आर्क होगा, ये आर्क होगा, और आर्क को क्या लिखोगे? रो इंटू डी फाई लिखोगे। अभी मैंने बताया आपको कि ये आपका जो है रो है, ये आपका फाई है, तो जो ये आर्क होगा, आर्क क्या होता है? आर्क इक्वल टू रेडियस इंटू चेंज इंटू द एंगल, राइट?
radius into change into the angle. So radius is what? Radius is rho, change in angle is what? d phi. तो एक बात बताइए आप, जब आप आर्क को कंसीडर करेंगे तो आर्क को जैसे आपने कंसीडर किया, राइट, एंड डीजेड आपका क्या है? अलोंग द जेड डायरेक्शन। तो जो बच्चे कंपोनेंट क्या है? बच्चे कंपोनेंट आपके क्या है? अलोंग द रो डायरेक्शंस का है, अलोंग द रो डायरेक्शंस। तो जो बच्चे कंपोनेंट है सर आपके अलोंग द क्या है? आपका रो डायरेक्शंस है, राइट। सो रो डायरेक्शंस के यहाँ पे कंपोनेंट को मैंने लिख दिया। सो अलोंग द रो डायरेक्शंस। अब देखो इसको लिखने का तरीका एकदम सिंपल सा लिखेंगे कैसे। आप सिर्फ डिफरेंशियल लेंथ को लिखिए सर, आप ओनली सिर्फ डिफरेंशियल लेंथ को लिखिए। अगर डिफरेंशियल लेंथ आपने लिख दिया तो सारे के सारे कंपोनेंट बहुत इजी तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे? देखो डिफरेंशियल लेंथ क्या था? dl इक्वल टू डी रो इंटू ए रो प्लस रो इंटू डी फा इंटू ए फा प्लस डी जेड इंटू ए जेड, राइट। ये हो गया आपका डिफरेंशियल लेंथ। अब ध्यान से देखिए, अगर आपने इसको और इसको कंसिडर किया तो यहां पर देखिए एरो डायरेक्शंस होगा। अगर आपने इसको और इसको कंसिडर किया तो ये होगा ए फाई डायरेक्शंस, और अगर आपने इसको और इसको कंसिडर किया तो ये होगा ए जेड डायरेक्शन। अब देखो हम लिखते हैं, सो डी एस इक्वल टू, हम एरो डायरेक्शंस का लिख सकते हैं कि एरो डायरेक्शन में किस तरह से होगा सर। तो एरो डायरेक्शंस का लिखना है ना, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये क्या है? रो डी फाई। बोलिए सर, ये क्या है आपका सर? रो डी फाई, और ये आपका क्या है सर? डी जेड। सो डी एस इक्वल टू रो डी फाई इंटू डी जेड एंड दिस इज इक्वल टू एरो, राइट। नाउ कम टू द पॉइंट, ए फाई लिखना है मुझे। सो इसको और इसको आप कंसिडर कीजिए। सो दिस इज डी रो इंटू डी जेड एंड दिस इज इक्वल टू ए फाई। डी रो इंटू डी जेड इंटू कितना? ए फाई। नाउ अगर आप इसको कंसिडर करना चाहते हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो ये क्या बनेगा? डी रो इंटू रो डी फाई along the z directions, राइट। देखिए यही है ना सर। तो अगर आपने एक डिफरेंशियल लेंथ लिख चुके हैं तो सारे के सारे कंपोनेंट लिख सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट योर एरिया कंपोनेंट्स। कौन सा? आपका एरिया। वॉल्यूम, वॉल्यूम तीनों मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? देखो dv इक्वल टू डी रो इंटू रो डी फाई इंटू डी जेड। अब इसी को कीजिए तो क्या बनेगा सर? रो डी रो डी फाई and dz, this is your differential volume of the cylindrical coordinates। तो ये बहुत इजी है सर, है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ध्यान से समझिएगा, इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर के डायरेक्शन में, रेडियस के डायरेक्शन में कितना चेंज है। सो आर के डायरेक्शन में जितना चेंज होगा दैट इज नथिंग बट डी आर। सो आर के डायरेक्शन में कितना चेंज है सर? तो ये आर के डायरेक्शन में कितना चेंज था? डी आर था। अब अगेन आर का क्या होगा? आर इक्वल टू रेडियस इंटू डी थीटा। ये चेंज इन थीटा है डी थीटा, और ये चेंज इन फाई कितना है? डी फाई है। तो बताइए ये आर है, आर में चेंज कितना हुआ? डी आर का चेंज हुआ। ये आर कितना चेंज होगा? तो आर इंटू डी थीटा चेंज होगा। एंड ये आर कितना चेंज होगा? ये आर, तो सर ये कितना था? डी फाई था। सर ये कितना था? डी फाई। और ये रेडियस कितना था? ये रेडियस था आर साइन थीटा। ऑलरेडी मैं अभी पहले डिस्कस कर चुका हूं। आर साइन थीटा, दिस इज डी फाई। सो दिस आर्क इज व्हाट? ये आर्क कितना बनेगा? सर ये आर्क जितना चेंज होगा वही आर्क ये चेंज होगा। सो ये आर्क चेंज कितना होगा सर? आर साइन थीटा इंटू कितना होगा सर? डी फाई का चेंज होगा। सो अलोंग द फाई डायरेक्शन द डिफरेंशियल लेंथ इन चेंज इज आर साइन थीटा इंटू डी फाई। Along the a theta direction this is r into d theta, and along the r direction this is dr. That's why the dl can be right here dr into ar plus
r into d theta plus r sin theta into d phi into a phi. So this is the differential length and this is the differential length, right? So यहाँ पर ये आपका निकल गया सर क्या, differential length dr into ar, dr into ar, r d theta into a theta and r sin theta into d phi into कितना सर आपका a phi. So these are the differential length, differential displacement along the spherical coordinates, right? अब देखो सर यही तो मेन है सर, एक ही तो मेन लिखना है बुआ, आपने डिफरेंशियल लेंथ लिख दिया ना तो डिफरेंशियल सरफेस और डिफरेंशियल वॉल्यूम बहुत इजी तरीके से आप लिख सकते हैं। बस एक याद रखना है, वो भी याद रखने की आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स है, यस अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है तो क्या क्या होगा, आर होगा, थीटा होगा, फाई होगा। सर आर में चेंज कितना होगा, डी आर चेंज होगा। सर थीटा में चेंज कितना होगा, सर आर इंटू डी थीटा होगा। सर फाई में चेंज कितना होगा, तो आर साइन थीटा इंटू डी फाई का होगा। तो दोनों तीनों को लिख देंगे तो सर डीएल वेक्टर दे देगा, डी आर अलोंग द ए आर डायरेक्शन, आर डी थीटा अलोंग द ए थीटा डायरेक्शन प्लस आर साइन थीटा डी फाई अलोंग द ए फाई डायरेक्शन। So this is your differential length. यही आपका क्या है सर, differential length है। Now come to the differential surface. हम differential surface की अगर बात करें तो सर differential surface कैसे लिखेंगे, आप लोग खुद बताइए differential surface कैसे लिखेंगे। आप तरीका भी आपको मैंने बताया कि अगर आपने AR डायरेक्शन पकड़ना है, चलो AR लिख दो, एकदम आराम से लिख दो, एकदम विदाउट टेंशन AR लिख दिया आपने। अब AR डायरेक्शन को पकड़ लिए सर तो बचे कौन सा है, r d थीटा एंड r sin थीटा into d phi। चलो यहाँ लिख दीजिए, so r into r, this is r square, this is r square, sin थीटा, this is sin थीटा, d थीटा, this is d phi, राइट। कहाँ कौन सा डायरेक्शन, तो सर ये है डायरेक्शन आपका d थीटा into d phi along the AR directions, along the AR directions। अब अगर हम बात करें कि थीटा डायरेक्शन में क्या होगा, अगर आप थीटा डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं सर तो बताइए बचे कौन कौन से हैं सर, dr है और कौन सा बचा है सर, r sin थीटा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, सिंपल सा क्या बनेगा, r sin थीटा dr d phi along the a थीटा डायरेक्शन। अब अगर आपने फाइव डायरेक्शंस का पकड़ा है तो जो बचे हैं उसको ऐड कर दे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बनेगा सर बताइए, ये बन जाएगा सर आपका r इंटू डी आर इंटू डी थीटा, क्या बनेगा r इंटू सॉरी r इंटू डी आर इंटू डी थीटा and along the a phi directions. So this is your differential surface, एकदम इजी तरीके से लिख दिए सर। डिफरेंशियल लेंथ लिखा, डिफरेंशियल सरफेस एकदम इजी तरीके से लिख दोगे, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं देख करके दो को मल्टीप्लाई कीजिए, बचे हुए को आप जो है परपेंडिकुलर मान लीजिए। अब ध्यान से देखिए, वॉल्यूम तो बहुत इजी लिखा जाएगा है कि नहीं, तीनों मल्टीप्लाई कर दो आप, क्या बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। दिस इज योर डिफरेंशियल वॉल्यूम। आई होप आज आप लोग का जो है ना मजा आ रहा होगा, आज आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम को देख रहे होंगे। तो अभी तक मैंने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा वो कौन कौन सा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड आपका सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। ये तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम को अभी हम देख चुके हैं। इस तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैंने क्या क्या देखा सर, डिफरेंशियल लेंथ देखा, डिफरेंशियल सरफेस देखा एंड सर देखा कौन सा, डिफरेंशियल वॉल्यूम को देखा। सो दीज आर द थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम्स व्हिच इज यूज्ड फॉर द लोकेशन ऑफ द एनी पॉइंट्स, है ना। किसी भी पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए इन सारे सिस्टम्स को हम लोग देख चुके हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, इसको लिख लीजिए बढ़िया तरीके से। देखिए यही चीज मैंने यहाँ पे लिख डाला है, डिफरेंशियल नॉर्मल एरिया आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई आर, आर साइन थीटा डी आर डी फाई ए थीटा, आर डी आर डी थीटा ए फाई। डिफरेंशियल वॉल्यूम
तीनों को आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका जल्दी में, बाद में भी इसको नोट्स बना सकते हैं आप, है ना, या आप साथ साथ पेन और पेपर के साथ नोट्स बनाते चले जाएं, तब मजा आएगा सर आपको, है ना। और कोई भी तरह का प्रॉब्लम होता है आप बेशक मुझे जो है व्हाट्सअप कीजिए, है ना, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है मेल कीजिए मुझे, व्हाट्सअप कीजिए मुझे, एफबी पे भी हूं मैं, है ना, कहीं पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी तरह का प्रॉब्लम है बेशक कांटेक्ट कर सकते हैं सर आप, है ना। चलिए अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, चलिए वेक्टर कैलकुलस। अब हम वेक्टर कैलकुलस की बात करते हैं। वेक्टर कैलकुलस में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रखता है आपका, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है वेक्टर कैलकुलस का, वो है सर आपका वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वेक्टर अलजेब्रा। इस वेक्टर अलजेब्रा में हम देखेंगे कि किसी भी पैरामीटर को किस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वेक्टर कैलकुलस, देखिए ध्यान से, वेक्टर कैलकुलस या इसी को बोलेंगे हम वेक्टर अलजेब्रा, जो सबसे ज्यादा यूज होगा आपका। ठीक है, ध्यान से देखिए, वेक्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द डेल ऑपरेटर। इसको बोलते हैं हम डेल ऑपरेटर, ध्यान से समझिएगा सर। डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर क्या है? ये ऑपरेटर ऐसा आत्मा है कि अगर किसी वेक्टर पे लगा तो स्केलर बना देगा, और किसी स्केलर पे लगा तो वेक्टर बना देगा। ऑपरेटर इज सेम। ठीक है, सो द डेल ऑपरेटर, डेल इज इक्वल टू, दिस इज डेल बाय डेल एक्स, इट मींस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन with respect to x, with respect to x. So this is del by del x into ax along the x directions, plus del by del y along the y directions, plus del by del z along the z directions, right? ध्यान से समझिएगा, ये जो डेल ऑपरेटर है ये क्या कर रहा है, किसी भी फंक्शंस पे लगेगा तो सर ये किस पे लगेगा सर ये किसी स्केलर पे लग सकता है, स्केलर पे लग के ऑपरेट होगा, या सर ये किसी वेक्टर पे लग के ऑपरेट होगा, राइट। सो द डेल ऑपरेटर, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डेल ऑपरेटर इज नथिंग बट दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन along the x directions, along the y directions, and along the z directions. So these are the partial differentiations, right? मान लिया कि कोई स्केलर क्वांटिटी है, मान लिया मैंने कि कोई एक स्केलर क्वांटिटी लिया, लेट से v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, लेट से दिस इज योर पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसका हम मुझे करना है, ध्यान से समझिएगा। तो मान लिया v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये कोई स्केलर क्वांटिटी है, होगा ही स्केलर क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं है, तो दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें अगर मैं डेल ऑपरेटर लगाऊं, क्या लगाऊं सर मैं, डेल ऑपरेटर, अगर मैं इसके ऊपर डेल ऑपरेटर लगाऊं, देन डेल v, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट ऑफ v, इसको बोलेंगे हम ग्रेडियंट ऑफ v, and this is equal to del by del x into ax plus del by del y into ay plus del by del z into az into x square y into z. Now come to the point. सर इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए सर। सर x के डायरेक्शन में अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे इसका तो क्या बनेगा सर, 2xyz into ax, y के डायरेक्शन में करेंगे तो क्या बनेगा सर, एक्स स्क्वायर जेड इंटू वाई, एंड जेड के डायरेक्शन में करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड। सर आपको पता होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन
कि अगर x के रेस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हैं, then y and z is treated as a constant. If you want to differentiate with respect to y, then x and z is considered to be a constant. If you want to differentiate with respect to the z, then x and y treated as a constant. This is called partial differentiation. Partially differentiation, right? So in this case, the gradient of v, this is nothing but 2xyz ax plus x square z into a y plus x square y into z, and this is nothing but which quantity? Vector quantity. सर कौन सा क्वांटिटी बन गया? ये आपका वेक्टर क्वांटिटी बन गया। अभी हम कौन सा कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे? हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। ये जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के केस में लिया तो ये जो है क्वांटिटी आपका क्या बन गया? ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन बिकम्स योर वेक्टर क्वांटिटी। एंड आपको पता है सर कि अगर वेक्टर क्वांटिटी बना तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा एंड क्या होंगे आपके? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस भी होंगे, राइट? सो द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस दोनों होंगे आपके। कब होंगे? जब किसी भी पॉइंट पे आपका डेल ऑपरेटर लगेगा और वो पॉइंट आपका क्या होगा? वो पॉइंट आपका होगा सर स्केलर क्वांटिटी। तो ये डेल ऑपरेटर बड़ा जालिम चीज है, देखो तो बड़ा ध्यान से समझिएगा सर। इसमें ये डेल ऑपरेटर स्केलर पे लगा तो बना दिया वेक्टर, और वेक्टर पे लगेगा तो क्या बनाएगा देखते हैं हम लोग, है ना? तो जो स्केलर पे लग के जो वेक्टर बनाया ना, इस डेल ऑपरेटर को बोल देते हैं हम ग्रेडियंट फंक्शन। क्या बोल देते हैं हम इसको? ग्रेडियंट फंक्शन, राइट? सो दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट फंक्शन। ऑपरेटर सेम है, ऑपरेटर सेम है, ये वेक्टर पे लग के अलग, स्केलर पे लग के अलग। तो जब स्केलर पे लगा तो ये बन गया आपका magnitude as well as directions, and this becomes vector quantity, and this vector quantity is said to be gradient of that functions. क्या बोलेंगे सर इसको हम? gradient of that functions, right? so gradient functions आपका वो कल आएगा। लेकिन अगर यही चीज आपका अगर किसी स्केलर पे बनाते तो स्केलर पे बनाते ही ये क्या बन जाता आपका? सॉरी, वेक्टर पे बनाते तो वेक्टर पे लगते ही क्या बन जाता? ये एक स्केलर क्वांटिटी बन जाता, जिसको बोल देंगे हम डाइवर्जेंस, राइट? चलिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, इसको नोट कर लीजिए सर, फिर हम बात करेंगे डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट की। चलिए नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। डाइवर्जेंस, ध्यान से समझिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस क्या है इसके बारे में देखते हैं लोग। सर डाइवर्जेंस जो है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी पे, मान लिया कोई वेक्टर क्वांटिटी, लेट से v इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई ए एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर ए वाई प्लस एक्स वाई जेड इंटू ए जेड, राइट? अब इसमें मुझे डाइवर्जेंस निकालना है। सो द डाइवर्जेंस ऑफ v, इसको बोलेंगे सर डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू डेल बाय डेल एक्स इंटू ए एक्स प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू ए वाई प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू ए जेड डॉट वी। वी क्या है सर? एक्स स्क्वायर वाई ए एक्स प्लस वाई जेड स्क्वायर ए वाई प्लस एक्स वाई जेड इंटू ई जेड। चलिए डिफरेंशिएट कीजिए। ए एक्स डॉट ए एक्स इक्वल टू 1, सो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा? ये 2x वाई प्लस ए वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको तो क्या बनेगा? जेड स्क्वायर प्लस जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा आपका? एक्स वाई। सो दिस इज योर डाइवर्जेंस ऑफ v।
दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ v। आप ध्यान से देखिए, ये डाइवर्जेंस ऑफ v आपका निकल चुका है ना, ये फंक्शंस आपका निकल चुका है, डाइवर्जेंस ऑफ v निकल चुका है। अब ये डाइवर्जेंस ऑफ v क्या बताया, स्केलर है या वेक्टर है सर? दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी, दिस इज योर स्केलर क्वांटिटी। भावनाओं को समझना है इसका ध्यान से। ऑपरेटर सेम है, ये ऑपरेटर सेम है, ये वेक्टर पे लगा तो बना दिया स्केलर, और ये स्केलर पे लगा तो बना दिया वेक्टर। तो जो वेक्टर बनाया इसको बोलेंगे हम ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ दैट फंक्शन। और जो स्केलर बना इसको बोल देंगे हम डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ दैट फंक्शन। So this is the gradient and this is your divergence. This is the concept of gradient and divergence. Now come to the point. चलिए अब देखते हैं सर हम इसको। So यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है मैंने, the gradient of a scalar field V is a vector that represents the magnitude and the direction of the maximum space rate of increase of V। ग्रेडियंट क्या बताता है, क्योंकि ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका एक अपना डायरेक्शंस भी होगा। सो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शंस भी होंगे। सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होंगे आपके, तो ऑब्वियस है ये किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताएगा। क्या बताएगा सर? ये मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज बताएगा। So this will represent the maximum rate of change, right? So the del operator is del by del x into ax plus del by del y into ay plus del by del z into az. This one for the Cartesian coordinates. So this is for Cartesian coordinate system. Now for the cylindrical coordinate system, अगर हम cylindrical की बात करें, then for the cylindrical coordinate system is nothing but for the cylindrical coordinate system देखिए, so this is for the cylindrical coordinate system। and cylindrical coordinate system का क्या आ गया सर? सर यहाँ पे cylindrical coordinate system का आ गया cylindrical coordinate system। चलिए सर बताइए, cylindrical coordinate system में किसके फॉर्म में होगा? रो, फाई एंड जेड के फॉर्म में होंगे। तो बताइए सर, डेल ऑपरेटर क्या बन गया? डेल बाय डेल रो इंटू ए रो, डेल बाय डेल रो इंटू ए रो प्लस 1 बाय रो इंटू डेल बाय डेल फाई इंटू ए फाई प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू ए जेड। सो दिस इज योर डेल ऑपरेटर फॉर द इसके लिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। अगर आप स्फेरिकल की बात करें, देन डेल बाय डेल आर इंटू ए आर प्लस 1 बाय आर डेल बाय डेल थीटा इंटू ए थीटा प्लस 1 बाय आर sin थीटा ए फाई डेल बाय डेल फाई। बोलोगे सर याद कैसे रखेंगे? देखो याद रखने का तरीका बताता हूं, देखिए ध्यान से। सर एंगल वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यहां रेडियस से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी रेडियस, यहां पर भी आपने रेडियस से डिवाइड कर दिया, राइट। सर यहाँ पर जो है फाई वाला कंपोनेंट के साथ आर sin थीटा आता था, यहाँ पे आप आर sin थीटा से डिवाइड कर दो। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको, राइट। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप फटाफट लिख लीजिए। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, इसको देखते हैं लोग बहुत अच्छे तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड आपको गिवन है, उसका सर निकालना है मुझे ग्रेडियंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रेडियंट इसका निकालना है, ध्यान से देखिएगा। ये किसमें है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। सर ये किसमें है? ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। ये किसमें है?
ये स्फेरिकल में है आपका, आर थीटा कॉम में है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। चलिए आंसर फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट आंसर क्या होगा ये का, ग्रेडियंट ऑफ v इक्वल टू del by del x into e raised to power minus z sin 2x cos hy ax plus del by del y e raised to power minus z sin 2x cos hyperbolic function of hy ay plus del by del z e raised to power minus z sin 2x cos hyperbolic function of ay। चलिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करते चले जाइए सर, ये हो जाएगा किधर डायरेक्शन, एजेड डायरेक्शंस में। पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो x के रिस्पेक्ट में कीजिए, सबसे पहला वाला कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में कीजिए, x के रिस्पेक्ट में करेंगे आप तो क्या बनेगा देखिए, x के रिस्पेक्ट में कीजिए, sin 2x का डिफरेंशिएशन 2 cos 2x नहीं, so this is 2 cos 2x e raised to power minus z cos hyperbolic function of y ax plus cos hyperbolic function of y का डिफरेंशिएशन sin hyperbolic function of y, right? So this is e raised to power minus z y, अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सो माइनस e raised to power minus z cos into az, so this is your gradient of v, so this is your right answer, clear? चलिए सर इसका आप क्या कीजिए, इसका आप है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दिस इज योर राइट आंसर। अपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सर, मेरे साथ आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? सो दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर बी कौन सा कोऑर्डिनेट है, क्वेश्चन नंबर बी, इन विच कोऑर्डिनेट, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। चलिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में देखिए क्या बन रहा है, क्वेश्चन नंबर बी, u equal to rho square z into cos 2 phi, that is rho phi and z. So the gradient of u equal to, बताइए क्या बनेगा, डेल बाय डेल रो, रो के रिस्पेक्ट में डेल बाय डेल रो, डेल बाय डेल रो इंटू रो स्क्वायर जेड कॉस 2 फाई प्लस ये क्या हुआ ए रो 1 बाय रो डेल बाय डेल फाई रो स्क्वायर जेड कॉस 2 फाई इंटू ए फाई प्लस डेल बाय डेल जेड रो स्क्वायर जेड कॉस 2 फाई इंटू, चलिए सर इसको कीजिए, रो के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, cos 2 phi a रो प्लस 1 बाय रो, रो से रो कैंसिल एंड cos 2 phi का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 2 sin 2 phi, so this becomes minus 2 रो z sin 2 phi into a phi प्लस z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या बनेगा सर, रो स्क्वायर cos 2 phi into az, this is your gradient functions, so this is your gradient function। चलिए अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चंस आप सर बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ कम टू द पॉइंट।
क्वेश्चंस, third question, W equal to, so this is nothing but your spherical coordinates, right? Now for spherical coordinates, this gradient of W del by del r, tan r sin squared theta into cos phi plus 1 by r del by del theta tan r sin squared theta into cos phi, this is a theta, this is ar, plus 1 by r sin theta del by del phi, this is tan r sin squared theta into cos phi, and this is equal to a phi. सर कर दीजिए आप इसको डिफरेंशिएट, सर पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए. नाउ डू द पार्शियल डिफरेंशिएशन. जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे and you will get the answer. So the partial differentiation, this is equal to r के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, tan sin square theta cos phi, this is ar, plus r से r कैंसिल हो गया, and 2 sin theta into sin theta का डिफरेंशिएशन cos theta, so this is 20 sin theta into cos theta, this is cos phi, this is cos phi into a theta plus r sin theta and r sin theta कैंसिल आउट हो गया, r sin theta से एक r sin theta कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बनेगा phi के रिस्पेक्ट में, so this is minus 10 sin theta cos phi, this is minus sin phi a phi, and this is gradient of W. This is called gradient of W. So this is the very very important, ये आपका आ गया सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, ग्रेडियंट निकाल लिया मैंने, ठीक है. स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट. तो दीज आर द आंसर्स जो मैंने आपको सॉल्व कर दिया है. इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं. तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट. Just take the screenshot. Now come to the divergence. डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, राइट. सर डाइवर्जेंस मतलब क्या हुआ, डाइवर्जेंस मींस डाइवर्ज आउट, बाहर निकलना. जब भी हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, इट मींस डाइवर्ज आउट होना, बाहर निकलना, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, राइट. So divergence of a vector and divergence theorem. What do you mean by the divergence theorem? So divergence theorem represent the relationship from volume to the surface. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो डाइवर्जेंस होगा क्या बनाएगा, स्केलर क्वांटिटी बनाएगा. सो डाइवर्जेंस थ्योरम ये बताता है कि the divergence of A at a given point P is the outward flux per unit volume as the volume shrinks about P, right. जैसे for example, let's say this is the point P. इस P पॉइंट से कितना टोटल आउटवर्ड फ्लक्स है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स कितना है इस P पॉइंट से, that will define the divergence. So let's say from this P point, this is the direction of the outward flux, and if this represent the outward flux direction, then this is called positive divergence. क्या बोलेंगे सर इसको हम,
पॉजिटिव डाइवर्जेंस, राइट। सो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डाइवर्जेंस, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस। क्या बोलेंगे सर इसको हम? पॉजिटिव डाइवर्जेंस, राइट। अगर फ्लक्स इनकमिंग है, अगर फ्लक्स आपका क्या है? इनकमिंग है, देन दिस इज कॉल्ड नेगेटिव डाइवर्जेंस। मतलब इनकमिंग पॉइंट है किसी भी सोर्स से, सोर्स पे इनकमिंग है टोटल आउटवर्ड फ्लक्स, देन दिस इज कॉल्ड, दिस इज नथिंग बट योर नेगेटिव डाइवर्जेंस। अगर जैसा इनपुट वैसा आउटपुट है, मतलब जीरो डाइवर्जेंस, कोई भी फ्लक्स आपके डाइवर्ज आउट नहीं हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो डाइवर्जेंस। This is the zero divergence. Whatever your coming input flux, that is equal to the output going flux. So that's why this is called zero divergence, right? So the divergence is nothing but divergence represent the total outward divergence theorem क्या बताता है? गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या बताया था कि the total outward flux through any closed surface is equal to net charge enclosed, यही बताया था आपका। अब ध्यान से समझिएगा, डाइवर्जेंस थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस का, अब क्लोज सरफेस का क्या निकलता है? वॉल्यूम निकलता है। किसी भी क्लोज सरफेस का, तो क्लोज सरफेस का क्या निकालेंगे सर? व्हाट यू वांट टू फाइंड फ्रॉम द क्लोज सरफेस? क्लोज सरफेस से आप क्या निकालना चाहेंगे सर? क्लोज सरफेस का हमेशा क्या निकलेगा? वॉल्यूम निकलेगा। अब ये वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम से जो भी आउटवर्ड फ्लक्स होंगे, मान लिया आपके आउटवर्ड फ्लक्स है, ध्यान से समझिएगा, ये मैंने मान लिया आपके आउटवर्ड फ्लक्स है। सर ये जो आउटवर्ड फ्लक्स है कहां स्प्रेड होगा? स्प्रेड आउट कहां पे होगा? ये थ्रू द सरफेस, स्प्रेड आउट थ्रू द सरफेस, ध्यान से समझिएगा। तो डाइवर्जेंस थ्योरम यही बोला था आपको कि डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर एट एनी पॉइंट P is equal to the closed integration, and this is nothing but surface integration of that vector at that point, and this is called divergence theorem। इसी को क्या बोले थे सर हम? divergence theorem, right? So in one line we can say divergence theorem relates the volume to the surface, वॉल्यूम टू द सरफेस। वॉल्यूम का रिलेशन सरफेस के साथ कौन देता है सर? आपका डाइवर्जेंस देता है। वॉल्यूम का रिलेशन किसके साथ? सरफेस के साथ। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस थ्योरम, एंड दिस इज नथिंग बट डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर। नाउ कम टू द पॉइंट। अब हम तीनों कोऑर्डिनेट में इस डाइवर्जेंस को लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब तीनों कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस जो होगा, डाइवर्जेंस क्या बनेगा? एक स्केलर क्वांटिटी बनाएगा। अब स्केलर क्वांटिटी बनाया, तीनों कोऑर्डिनेट में स्केलर क्वांटिटी क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या बन जाएगा सर? सिंपल सा, डेल, मान लिया, लेट हियर, लेट a इक्वल टू ax इंटू ax, ay इंटू ay प्लस az इंटू az। मान लिया ये आपका है ax, वेक्टर क्वांटिटी आपका। This is the vector quantity in the Cartesian coordinates. Cartesian coordinates. Let a equal to a rho
ए रो प्लस ए फाइव ए जेड वेक्टर क्वांटिटी कहां पर, वेक्टर क्वांटिटी इनटू द cylindrical coordinate. Now let A equal to AR plus A theta plus AZ in the spherical coordinate, right? So this is along the Cartesian coordinates and this is for the cylindrical coordinates. चलिए तो यहां पर देखेंगे, एक हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, एक हो गया आपका कौन सा, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का। यहां पर देखिए ये हो गया आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दिस इज योर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड दिस इज योर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये आपको कौन सा हो गया सर, आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। So this will represent the spherical coordinate system. ठीक है सर। सो कार्टेशियन, सॉरी सिलिंड्रिकल एंड दिस इज स्फेरिकल। स्फेरिकल में 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर इंटू ए आर प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा साइन थीटा इंटू ए थीटा प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल एफ आई अपॉन ए फाई। ध्यान रखें ये सब। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम। कौन सा है सर आपका, डाइवर्जेंस। दिस रिप्रेजेंट divergence of A. This represent divergence of A. This represent divergence of A. So this is called divergence. अब देखो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। वॉल्यूम का रिलेशन किसके साथ दे रहा है, ये दे रहा है क्लोज सरफेस के साथ एंड सरफेस शुड बी ओपन, राइट। सरफेस का बाउंड्री लाइन क्लोज होगा कैसे, देखो ध्यान से। अब ऐसे एग्जांपल समझो, ये टॉर्च मान लो, ध्यान से समझना। ये मैंने टॉर्च मान लिया, एक सोर्स ऑफ लाइट है आपका टॉर्च, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, राइट। अब इस टॉर्च के अंदर क्या होता है, सेल लगे होते हैं, बैटरी होते हैं, जो क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कहां पर है, क्लोज सरफेस के अंदर है। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर है सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये स्प्रेड आउट कहां होगा, वेयर दिस इज स्प्रेड आउट, ये स्प्रेड आउट होगा आपका कहां पर सर, ये सरफेस के ऊपर होगा। तो क्लोज वॉल्यूम का सरफेस के साथ जो रिलेशन है, क्लोज वॉल्यूम का सरफेस का साथ जो रिलेशन है दोस्तों, यही है आपका, यही है कहलाता है आपका डाइवर्जेंस थ्योरम। तो सर डाइवर्जेंस थ्योरम यही था आपका कि डाइवर्जेंस ऑफ ए इन द वॉल्यूम इंटीग्रेशन, और वॉल्यूम को ट्रिपल इंटीग्रेशन से रखेंगे, इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रेशन एंड सरफेस शुड बी क्लोज A dot ds, and this is called divergence theorem. This is called divergence theorem. इसी को क्या बोलेंगे सर हम, divergence theorem। चलिए, now come to the point. चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के देखते हैं हम लोग। चलिए पहला क्वेश्चन क्या रहा है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट क्वेश्चन किसमें है सर आपका, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कह रहा है डिटरमाइन द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर फील्ड। इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस बताइए आप, ठीक है। चलो लिखते हैं हम लोग, डाइवर्जेंस ऑफ P इक्वल टू
del by del x square y z plus del by del y into 0 प्लस डेल बाय डेल जेड इंटू एक्स जेड। चलिए x के रिस्पेक्ट में कीजिए डिफरेंशिएट, तो ये क्या बनेगा 2xyz प्लस 0 प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बनेगा x। सो दिस इज 2xyz प्लस x, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ p, दिस इज द डाइवर्जेंस ऑफ p, राइट। चलिए अब आते हैं हम लोग q फंक्शंस का। q में क्या है, यहां पर देखो ये है रो फाई एंड जेड के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में था सर, रो फाई एंड जेड के फॉर्म में, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लें ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, come to the next question. Second question. This is rho, phi, and z. This is cylindrical coordinates, right? So the divergence of Q equal to divergence of Q is what? Del by del rho 1 by rho, right? This is Q rho plus 1 by rho del by del phi into Q phi plus del by del z into qz. So this is 1 by rho. This is 1 by rho del by del rho, right? This is the, अगर आप चेंज करना चाहें इसको देख सकते हैं फॉर्मूला, मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला जो इसको बता चुका हूं, फॉर्मूला है ना। कौन सा फॉर्मूला देखिए सर, आप ऑलरेडी देखिए इस फॉर्मूले में एक बात करें अगर हम, तो देखो ये आपका हो गया फॉर्मूला 1 by rho del by del rho rho into this one by rho del by del a phi del by del z, राइट। तो यहाँ पर जो है इस फॉर्मूले पे अभी हम इसको पुट करेंगे सर, ठीक है ना। तो ये 1 by rho क्या लिखा था मैंने, तो del q डाइवर्जेंस ऑफ q इक्वल टू 1 by rho del by del rho rho sin phi प्लस आगे आपका रो sin phi 1 by रो इंटू दिस वन, तो रो स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 1 by रो del by del phi रो स्क्वायर इंटू जेड प्लस del by del z इंटू जेड cos phi। सर डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2 रो से रो खत्म, 2 sin phi प्लस 0 प्लस cos phi, राइट। नाउ कम टू द डाइवर्जेंस ऑफ t। सर डाइवर्जेंस ऑफ t क्या होगा, देखो 1 by r स्क्वायर del by del r square into tr, so 1 by r square cos theta plus 1 by r sin theta, this is del by del theta, del by del theta, this is sin theta into r sin theta into cos phi, right, plus 1 by r sin theta del by del phi into cos theta। सो या थीटा के रिस्पेक्ट में या फाई के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन कितना, 0, r स्क्वायर कैंसिल आउट, सो दिस इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 by r sin theta del by del theta
So this becomes r sin theta, r sin square theta, so r cos phi बाहर आ जाएगा, r से r कैंसिल आउट हो गया. So this is cos phi upon sin theta into sin square theta is 2 sin theta and sin theta cos phi, 2 sin theta into cos phi. Sin theta cancel out. This is 2 cos phi cos theta into cos phi. It's your answer. So these are the questions which is based on your divergence theorem. Basic questions है. So students इस क्वेश्चंस को कीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से. ये इसका आंसर अगर आप देखना चाहें तो इसका आंसर आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं. मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं सॉल्व कर चुका हूं. ठीक है, आज का हम सेशन यहीं पे खत्म करते हैं. आई होप आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे, है ना. गेट फोरम के इस सेशन से आप जुड़े रहें और इस तरह से जो है प्यार बनाए रखें गेट फोरम के साथ. और हम आपके साथ अभी स्टार्ट ही किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. अच्छे और कॉन्सेप्ट लाएंगे और अच्छे और क्वेश्चन के साथ हमेशा आपके साथ बना रहेंगे. थैंक यू सो मच. एंड किसी भी तरह का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. यू कैन कांटेक्ट मी. थैंक यू सो मच. बाय बाय.